کیا آپ نے کبھی دل سے یہ سوال کیا کہ برائی واقعی دنیا سے ختم ہو گئی، یا اس نے خاموشی سے انسان کو قابو کرنا سیکھ لیا؟ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، یہ کہانی کسی اور کی نہیں، یہ آپ کی اپنی کہانی ہے۔ آپ اولاد آدم ہیں، اور یہ چینل آپ ہی کا ہے۔ ابتدا ہی سے تینوں آسمانی کتابیں انسان کو ایک ہی دشمن سے خبردار کرتی ہیں۔ انجیل بتاتی ہے کہ شیطان تلوار لے کر نہیں آتا، وہ سوال بن کر آتا ہے، وہ دل میں سرگوشی کرتا ہے۔ کیا واقعی اللہ نے ایسا ہی کہا تھا؟ تورات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ گمراہی شور مچا کر حملہ نہیں کرتی، وہ آہستہ آہستہ الزام بن کر انسان کے دل میں داخل ہوتی ہے۔ قرآن ہمیں سب سے صاف حقیقت بتاتا ہے کہ ابلیس نے ایک بار کھلی بغاوت کی، اور وہ ناکام ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی جنگ بدل لی۔ اس نے کہا، میں انسان کے سامنے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسان کی تاریخ بدل گئی۔ ابلیس نے یہ سیکھ لیا کہ آگ مٹی کو شکست نہیں دے سکتی، تکبر اطاعت کو نہیں ہرا سکتا، اور کھلی دشمنی انسان کو قابو میں نہیں لا سکتی۔ جب آدم اور حوا زمین پر آئے، ابلیس نے ان پر حملہ نہیں کیا، وہ ان کے پیچھے خاموشی سے چلتا رہا۔ اس نے بھوک دیکھی، اس نے خوف دیکھا، اس نے ذمہ داری کا بوجھ دیکھا، اس نے انسان کی کمزوری سیکھ لی۔ اولاد آدم ایک خاموش دنیا میں پلی بڑھی۔ نہ شہر تھے، نہ بادشاہ، نہ فوجیں، مگر خوف تھا، اندھیرے کا خوف، موت کا خوف، انجان چیزوں کا خوف۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا، اللہ کو چھوڑ دو، اس نے صرف اتنا کہا، اپنا بچاؤ خود کرو۔ یہی وہ پہلا دھوکہ تھا۔ جب پہلی موت ہوئی، جب پہلی قبر بنی، تو دل کانپ اٹھے۔ ابلیس نے سرگوشی کی، اگر تم نظر نہ آنے والی طاقتوں کو خوش کر لو، تو تم محفوظ رہو گے۔ یہاں سے سفر شروع ہوا۔ پہلے عبادت نہیں، صرف خوف کو قابو میں رکھنے کی کوشش۔ نسلیں بڑھتی گئیں، قبیلے بنے، انسان دریا کنارے بسے۔ جہاں خوف بڑھا، وہاں ابلیس نے خیال ڈال دیا، دریا ہمیں رزق دیتا ہے، اس کا احترام کرو۔ سورج ہمیں حرارت دیتا ہے، اسے مقدس سمجھو۔ طوفان ہمیں تباہ کرتا ہے، اسے خوش رکھو۔ یہ ابھی شرک نہیں تھا، یہ جذباتی وابستگی تھی۔ صدیوں بعد انسان بھول گیا کہ وہ کہاں سے آیا تھا۔ یادیں کہانی بن گئیں، کہانیاں رسم بن گئیں، پھر عظیم تہذیبیں ابھریں۔ بین النہرین میں قانون بنا، طاقت پیدا ہوئی، بادشاہوں نے کہا، ہمیں خداؤں نے چنا ہے۔ سوال کرنا گناہ بن گیا۔ مصر میں فرعون خدا بن بیٹھا، لوگ زنجیروں سے نہیں، عقیدے سے جھکے۔ سندھ کی تہذیب میں نظم تھا، صفائی تھی، لیکن روحانیت رسم بن گئی۔ چین میں آباء و اجداد کی یاد مقدس بن گئی، احترام اطاعت میں بدل گیا۔ ہر زمین پر ایک ہی کھیل۔ ابلیس نے اللہ کو نہیں نکالا، اس نے اللہ کو دور کر دیا۔ درمیان میں رسمی، پجاری، طاقت، خوف۔ نبی آئے تو انہوں نے بت نہیں توڑے، انہوں نے غرور توڑا، انہوں نے کہا، تم غلط ہو۔ لوگوں کو یہی بات سب سے زیادہ بری لگی۔ ابلیس نے پھر حکمت بدلی، اس نے سچ کو سخت بنا کر پیش کیا۔ لوگ کہنے لگے، ہم مانتے ہیں، لیکن ابھی نہیں، بعد میں، اور بعد میں کبھی نہیں آتا۔ وقت سب سے خطرناک ہتھیار بن گیا۔ آج دنیا بدل چکی ہے، بادشاہ نہیں، لیکن نظام ہیں۔ لوگ آزاد سمجھتے ہیں، لیکن فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ ابلیس اب حکم نہیں دیتا، وہ مصروف رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تمہارے پاس وقت ہے، مگر وقت خاموشی سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہی خاموش قبضہ ہے، لیکن امید باقی ہے، کیونکہ جس دن اولاد آدم سوال کرنا شروع کر دے، یہ سب ٹوٹ جاتا ہے۔ میں یہ کیوں مان رہا ہوں؟ مجھے کس چیز نے ڈرایا؟ میں کس چیز کو ٹال رہا ہوں؟ ابلیس ایک چیز سے ڈرتا ہے،
जागता हुआ इंसान, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो इसका मतलब है खामोशी अभी आप पर गालिब नहीं आई, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी मकाम पर रुक जाते हैं जहाँ सच आराम छीनने लगता है। ये याद रखें, ये दास्तान सिर्फ माजी की नहीं, ये आपके अंदर की जंग है। जब इब्लीस ने खौफ को काबू में करना सीख लिया तो उसने अगला कदम उठाया। इसने समझ लिया कि इंसान को ज़बरदस्ती झुकाया नहीं जा सकता, इंसान को कायल किया जाता है। आबादी बढ़ी, शहर फैले, रास्ते जुड़े, तिजारत बढ़ी और उसी के साथ इक़्तिदार की भूख पैदा हुई। बैन अल-नहरीन में बादशाह ने कहा, हमें आसमान की ताईद हासिल है, हमसे इख्तिलाफ खुदा से इख्तिलाफ है। लोग कमज़ोर नहीं थे मगर डरे हुए थे कि कहीं वो गलत ना ठहर जाएं। मिस्र में नज़म सब कुछ था, फ़रून ने खुद को खुदा कहा और लोगों ने मान लिया, ना इसलिए कि वो मजबूर थे बल्कि इसलिए कि वो यकीन कर बैठे थे। यहाँ इब्लीस ने एक नया सबक सिखाया, सच से ज़्यादा सज़ा का खौफ ताकतवर होता है। यूनान में अक़ल को मुक़द्दस बना दिया गया, सोच इबादत बन गई, मगर गुरूर खामोशी से दाखिल हो गया। लोग पूछने लगे, ये बात कितनी ज़हीन लगती है, ये नहीं कि ये कितनी दुरुस्त है। इब्लीस ने कहा, तुम्हें वही की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा दिमाग काफ़ी है। और यूं दिमाग बुत बन गया, रूम में ताकत सच बन गई। जो जीता वही दुरुस्त ठहरा, हारने वाला गलत ठहरा। यही वो लम्हा था जब जुल्म को जुवाज़ मिला। सिंध की कदीम तहज़ीब में नज़म था, तरतीब थी, मगर ईमान वरासत बन गया। लोग मानते थे क्योंकि उनके बाप दादा मानते थे। ईमान इंतखाब नहीं रहा, शनाख्त बन गया। चैन में हम आहंगी सबसे ऊपर थी। नज़म को ना छेड़ने का हुक्म था, चाहे नज़म गलत ही क्यों ना हो। इब्लीस ने कहा, सच से ज़्यादा अमन ज़रूरी है। हर खित्ते में, हर ज़बान में एक ही तब्दीली आई। अल्लाह का ज़िक्र रहा मगर मरकज़ में ना रहा। इताअत पीछे चली गई, रस्म आगे आ गई। इंसान खुद को दीनदार समझने लगा, बग़ैर फरमानबरदार बने। जब नबी आए, इन्होंने सुकून को चैलेंज किया। इन्होंने कहा, तुम्हारा रास्ता दुरुस्त नहीं। लोगों को यही बात सबसे ज़्यादा नागवार गुजरी, क्योंकि सच तब्दीली मांगता है। इब्लीस ने यहाँ एक और चाल चली, इसने सच को इंतहा पसंद बनाकर पेश किया। लोग कहने लगे, इतना सख्त नहीं होना चाहिए। तवाज़ुन के नाम पर समझौता होने लगा। लोग कहने लगे, हम अल्लाह को मानते हैं मगर खुद को भी मानते हैं। हम हिदायत को मानते हैं मगर अपनी सहूलत के मुताबिक। इब्लीस को मंदिरों की ज़रूरत नहीं रही, इसे बहाने मिल गए। सदियों गुजरीं, सल्तनतें टूटीं, नई सल्तनतें बनीं, नाम बदले, लिबास बदले, मगर मंसूबा वही रहा। सोच को काबू में रखो, खौफ को काबू में रखो, ख्वाहिश को काबू में रखो। इंसान ये समझता रहा कि वो खुद फैसला कर रहा है, हालांकि रास्ते पहले ही तय हो चुके थे। इब्लीस अब नबियों से नहीं लड़ रहा था, वो याददाश्त से लड़ रहा था। सच और तहज़ीब के दरमियान फ़र्क मिटा दिया गया। लोग अपनी ज़िंदगी का दिफा करने लगे, ये जाने बगैर कि इसे किसने बनाया है। यही खामोश गुलामी है। अगले हिस्से में ये जंग आज के इंसान तक पहुँचेगी, जहाँ आज़ादी धोखा बन चुकी है, जहाँ इंतखाब जाल बन चुका है और जहाँ वापसी का रास्ता अभी भी मौजूद है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये इस बात की अलामत है कि खामोश कब्ज़ा आप पर मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसी मकाम पर रुक जाते हैं जहाँ सच जिम्मेदारी मांगता है। ये आखिरी हिस्सा है जहाँ ये जंग सिर्फ तारीफ नहीं रहती बल्कि आपकी अपनी ज़िंदगी बन जाती है। वक्त आगे बढ़ा, दुनिया बदल गई, बादशाहों के ताज गिर गए,
मगर कब्जा ख़त्म नहीं हुआ। अब ताकत नज़र नहीं आती। अब वो कानून में है, निज़ाम में है, सोच में है। इब्लीस ने एक और बात सीख ली, अगर इंसान खुद को आज़ाद समझे तो वो कभी सवाल नहीं करता। लोगों ने पूछना छोड़ दिया, ये दुरुस्त है या नहीं। इन्होंने पूछना शुरू किया मुझे अच्छा लगता है। एहसास ने इफ़लाक़ की जगह ले ली, ख्वाहिश ने ज़ब्त की जगह ले ली। इब्लीस ने कहा, जो दिल चाहे वही दुरुस्त है, और सच टूट गया। यूरोप में तरक्की ने रफ्तार पैदा की, वक्त दौलत बन गया, सुकून कमज़ोरी कहलाया। अमेरिका में आज़ादी सब कुछ बिन गई, मगर मकसद पीछे रह गया। मशरिक़ में रिवायत बाकी रही, मगर सवाल करने का हौसला कम हो गया। मशरिक़ वस्ती में याद बाकी रही, मगर फ़िरक़ा बंदी दाखिल हो गई। ज़मीन बदलती रही, जाल वही रहा। मसरूफ़ इंसान सोच नहीं करता, आसूदा इंसान पलट कर नहीं देखता। इब्लीस ने कहा, तुम्हारे पास वक्त है, और वक्त खामोशी से निकलता रहा। अल्लाह को झटलाया नहीं गया, अल्लाह को मुअख्खर कर दिया गया। बाद में, किसी दिन, कभी। यही सबसे बड़ा फ़रेब है। जब मुश्किल आई, तो इंसान ने कहा, अल्लाह ने ऐसा क्यों होने दिया? मगर ये नहीं पूछा, हमने अल्लाह को कब नज़रअंदाज किया। ये खामोश कब्ज़े की आखिरी शक्ल है। इल्ज़ाम बग़ैर जवाबदही, ईमान बग़ैर अमल, उम्मीद बग़ैर कोशिश। सच ये है, इब्लीस ने कोई नई ताकत हासिल नहीं की, इसने वो ताकत ली जो इंसान ने खुद दे दी। वो मजबूर नहीं करता, वो मशवरा देता है। वो हुक्म नहीं देता, वो मसरूफ़ रखता है। वो ईमान नहीं तोड़ता, वो अमल टालता है। कुरान ने खबरदार किया कि उसका रास्ता आहिस्ता आहिस्ता है। इंजील ने बताया कि धोखा अक़ल के लिबास में आता है। तौरात ने कहा कि गुमराही आसानी के रास्ते से दाखिल होती है। तीनों ने एक ही बात कही, दुश्मन चीखता नहीं, वो माकूल लगता है। मगर अब उम्मीद की बात सुन ली। खामोश कब्ज़ा उसी लम्हे टूट जाता है जब इंसान जाग जाए, जब वो सवाल करे, मैं ये क्यों मान रहा हूँ? मुझे किस चीज़ ने डराया? मैं किस चीज़ को टाल रहा हूँ? इब्लीस एक चीज़ से डरता है, जागती हुई औलादे आदम, कामिल नहीं, बेखता नहीं, मगर बाखबर। क्योंकि आगही इंतिखाब पैदा करती है, और इंतिखाब अल्लाह की तरफ लौटाता है। ये चैनल उसी लिए है, डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए। माजी पर इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं, हाल वापस लेने के लिए। ये कहानी मेरी नहीं, ये आपकी है। अगर आज आपके दिल में कुछ हिला है, अगर आपने खुद को इस दास्तान में देखा है, तो इस सफ़र से जुड़े रहें, इस चैनल का हिस्सा बने रहें। क्योंकि आदम से आज तक ये पूरी दास्तान आप ही की दास्तान है।